compute. So, guys, we have already, this is day two of our program. So, basically, we will try to cover it in 5 days. But as 31st is coming and I will be out there in Bangalore for boot camp. So, we will continue the remaining three sessions on the dates of that would be 10th, 11th, and 12th of January. Most probably, if the boot camp is not there, because tomorrow I am leaving to the Bangalore. Let's have a recap of everything, whatever we have learned up till now. So, so this was overall the 5 days of workshop that we were trying to conduct regularly. But after, like I will start remaining three sessions, we will do it on 10th, 11th, and 12th. Uh, Coming back, we discuss about the inner game and outer game. Inner game is all about your self-talk, your beliefs, your self-worth, your self-identity, and a lot of things. And outer game is the structures, techniques, methodologies you use. Clashes between what you speak, huge problem for you. वो बहुत आपको कुछ दिनों बाद वो बहुत फेक 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 लगने लग जाएगा. इट हैपेंड विद मी ऑल्सो. मैं अलग अलग तरह का मटेरियल जमा करता था, अलग अलग तरह का कैंट रूटीन इस्तेमाल करता था, अलग अलग लोगों की लाइंस चिपकाता था. what I found that they are working better for them, but they are not working in that good way as it was supposed to work for me. उनके लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा है. ऐसा इसलिए होता था कि देर इज अ फैक्टर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी लैकिंग थी. फिर हमने बात किया था बिलीफ्स और इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि हमारा जो बिलीफ होता है, हम कुछ भी चीज सोचते हैं, समझते हैं, एक हम इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं. हमारे लिए ऐसा है. वुमन की थेरी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफर करती है बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स दे हैव. इफ यू थिंक दैट द वुमन आर मीन, कनिंग एंड वायलेंट, इफ देयर आर नो लॉयल वुमन, दैट मीन्स यू हैव कैरिड दैट बिलीफ थ्रू आउट your life. If you think that getting woman for me is very easy, sex is natural, animals don't need to learn anything about the game, but still they have amazing dating life because uh, you might have got good amount of experience. So interpretation, what is happening to you, is all connected. Cycle of belief, as I say, belief is not always about the experience. Then I told you about my story of EFT and a lot of other things that I did and a lot of the programs I have attended. And this was my journey, how to change the belief system. I was in cold approach, doing game. But in 2020-21, after getting one or two results, I got stuck. मैं ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इतना साल, इतना टाइम, इतना समय दे दिया है गेम को, इतने कोल्ड अप्रोचेस किए हैं, कम से कम 3-4 हजार तो हो ही गए थे उस टाइम पे. और ऐसा हो रहा था कि मैं फिर से जीरो हो रहा हूँ. फिर से मेरे बिलीफ वही था, मैं जहां पहले था वहीं आज भी हूँ. और ऐसा लगने लग गया था कि ये तो बहुत मशक्कत वाली बात है भाई, मुझे कितना काम करना पड़ेगा. एंड ये कुछ किताबें हैं. यू डोंट हैव टू रीड ऑल द बुक्स, बट डेफिनेटली देयर आर सर्टेन बुक्स दैट यू मस्ट रीड. मैंने उसके बारे में मेंशन किया था. ये मेरा पेज है रीड्स विद राज इंस्टाग्राम पे. और यहाँ पे ये जो लिंक है, इफ यू विल क्लिक ऑन दैट बुक, आई हैव गिवन द रेटिंग टू द बुक. जिसको 5 out of 5 है, दैट इज अ मस्ट रीड. And these were certain seminars, workshop regarding various n number of things that I have did. फिर भी beliefs change नहीं हुए. फिर I learned EFT from here. And apart from that, every person has certain kind of mental blocks. वो mental blocks that keeps us stagnating, holding our success when it comes to dating, relationship, sexuality, being sex worthy as a man, perceiving the thing, how the game works for us, how the sexuality of us is. And we always have. तो हम आज 10 ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जो 10 असेंशियल ब्लॉक्स है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है आपका कौन सा है. If you remove the blocks that are holding you, the soon the flow will be easy, the game will be easy, because the person who have two limitations. एक एक कहानी सुनी होगी आपने कि व्हाट द ब्लॉक्स आर. एक हाथी की कहानी होती है. बचपन से वो जो हाथी होता है उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध के रखते हैं. और जब वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका, अभी वो हाथी वो चाहे तो वो पतली सी रस्सी को ऐसे तोड़ सकता है, लेकिन
होता है कि उसकी वो कंडीशनिंग बन गई है कि मैं रस्सी से बंधा हूँ, वो पतली रस्सी भी मुझे होल्ड करके रख सकती है, बिकॉज इट हैज द वे ही हैज कंडीशन, इट हैज क्रिएटेड अ ब्लॉक इनसाइड हिम दैट आई कांट ब्रेक दोज लिमिटिंग बिलीफ, एंड एक ब्लॉक बन जाता है। जैसे ऑल 10 ब्लॉक्स भी किसी में हो सकते हैं, हाँ ब्रो, ऑफ कोर्स ऑल 10 ब्लॉक्स, मैं तो बोलता हूँ मुझ में तो सभी थे। मुझ में तो सभी थे। एंड ब्रो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन ब्लॉक्स आई एम स्टिल वर्किंग ऑन, which is regarding with business, which is regarding with entrepreneurship, with it, which is regarding with money, which is regarding with finance, which is regarding with health, which is regarding with bodybuilding. Of course, तरह तरह के लाइफ के सिचुएशंस में तरह तरह के नए नए ब्लॉग्स आते हैं और वो आते रहेंगे। वी आर नॉट द एनलाइटेंड पीपल एंड नाइदर आई रिकमेंड यू टू गेट एनलाइटेंड टुमारो, बट रिमूव दो साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स। लेट्स अंडरस्टैंड, जैसे एक ब्लॉक था कि यार मैं तो मार्केटिंग में हूँ, मुझे तो ऐसा जॉब मिल ही नहीं सकता, मेरे जॉब में तो सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ता है, रिलैक्स और कंफर्टेबल जॉब होते ही नहीं है। ये मेरा मेंटल ब्लॉक, मैंने उसके ऊपर टैप आउट कर दिया, अचानक अपॉर्चुनिटी सडनली बाद में आने लग गई मेरे पास। मैं हमेशा सोचता था ऐसा कैसे होगा जॉब में, लेकिन जॉब में भी वैसा हुआ। देन आई गॉट प्लेस्ड इन थिंकब्रिज, विच वाज अ गुड कंपनी, जहाँ पे पूरा फ्रीडम था, नो लॉग इन टाउन, नो लॉग आउट, नो नो लॉग इन, नो लॉग आउट टाइम। और आई वाज वर्किंग फॉर ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स, एंड दिस आर ऑल क्रेडिट सिविल स्कोर मेंटेन कंपनीज, तो वो उनके क्लाइंट थे। और जॉब ऐसा था कि कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कुछ भी काम करो, सिर्फ 10 बजे से 10:30 बजे तक स्क्रम का मीटिंग अटेंड कर लो, यानी फुल टाइम आप ओपन गेम करने के लिए। एंड trust me, it has given, at that period it has given me maximum result, maximum pulse, because mentally I was not exhausted। लेकिन वो ब्लॉक एक मेंटल ब्लॉक था कि वी थिंक फ्रॉम आवर लिमिटेशन perspective। These was I was talking, and definitely I would recommend you to watch the video Biology of Belief by Bruce Lipton। उसमें वो कहते हैं कि how the people are, how the beliefs are formed, how in your body the proteins, the enzymes, the dopamine, और बहुत टेक्निकल और बायोलॉजिकल स्टफ में वो एक्सप्लेन करता है और उसका कोरिलेशन बताता है आपकी रियलिटी के साथ में, आपकी रियलिटी कैसे होती है। बिलीफ के ऊपर आपने काम कर लिया तो गेम विल बिकम मच इजियर फॉर यू एंड इजी। द डेटिंग, द सेक्सुअलिटी, मतलब लाइक वुमन लव सेक्स, वुमन लव सेक्स, वुमन लव सेक्स मोर देन मैन, वुमन लव सेक्स मोर देन मैन। बट अगर मेरे बिलीफ सिस्टम में वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी। सो दैट्स द रीजन वी हैव टू क्लियर दोज ब्लॉक्स। Then we talk, these were few people that have learned EFT on EFT वैसे अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। I explained you regarding this, जो हमने कल कवर किया था, recordings are there। I have already uploaded on YouTube, you can go to the channel, and I've given you the example of yesterday about the T Harvey car। Now this is something that you have to understand। एक गेम में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पर्सन की वाइब। कुछ लोग है ना, कुछ लोगों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए वो, उनका वाइब भी बहुत डल होता है, बात करके समझ में आता है यार ही इज नॉट मैग्नेटिक, ही इज नॉट करिज्मेटिक, ही इज नॉट इंटरेस्टिंग, हिज वाइब इज डेड। जैसे अगर कौस्तुभ भाई हमेशा बोलते हैं यार इसको दूर रख मेरे से, इससे बहुत भयानक वाइब आता है मेरे को, ये बहुत निगेटिव है, ये बहुत ये बहुत अलग तरह की वाइब देता है। तो द रीजन इज दैट मीन्स ही हैज सर्टन लॉट ऑफ इश्यूज इनसाइड, which might be regarding pain, anxiety, grief, anger, jealousy, hatred, lot of things might be ठूस ठूस के भरे होंगे उसमें। Some people do get addicted to struggle of their life so much that they are not able to live their life in a फ्लेक्सिबल कन्वीनियंट वे। कुछ लोगों का वो बिलीफ ही होता है सब कुछ स्ट्रगल करके ही मिलना है, मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना ना थकना है मना। हमारे दिव्य भाई का वो कंसेप्ट था जब गेम में आए थे, भाई वो रेस्ट ही नहीं करते थे, करते रहते थे कुछ तो भी। तो वो भी एक बिलीफ बनता है क्योंकि दे डोंट थिंक दैट ओके आई कैन गेट द थिंग्स इजीली एंड एफर्टलेसली। Money and women should come to you effortlessly. That's the primary goal of a man, because when it comes to effortlessly, you are at ease, you will be at relax। Then we talked about this is the thing that we will talk today। अगर आपके अंदर बहुत शेम है, बहुत गिल्ट है, बहुत ग्रीफ है, फियर है,
डिजायर वगैरह होना ठीक है, लेकिन डिजायर से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, एंगर है, जेलिसी है, हेट्रेड है, तो क्या होता है ना, यू डोंट गिव अ गुड वाइब. आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. एज आई सेड, आई वॉज लकी इनफ, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ. मैं बस गाड़ी लेने गया था, तो मैंने सीबीआर स्पोर्ट्स बाइक पे बस ऐसा बोल दिया, पापा ये गाड़ी भी अच्छी है, पापा बोले खरीद ले. मैंने खरीद लिया. सो देयर वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड हु केम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, जिसके माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया, तो गाड़ी वाड़ी चलाते थे. तो उस टाइम पे, अभी 6-7, 5-6-7 साल पहले की बात है, तो मैं गाड़ी वाड़ी चलाता था, कभी कभी वो लेके जाता था. पर एक दिन मुझे ऐसा पता चला कि उसने वो जानबूझ के स्क्रैच मारा है गाड़ी में, बिकॉज फॉर हिम, यस ब्रो, होंडा सीबीआर, जानबूझ के ये मारा है. यू नो, पीपल हैव that enviousness, that jealousy towards the people. I'm not saying that he's bad, he is wrong person, or he's something, but it's just because it's like they have that certain kind of issue. तो वो जब भी आता था, और जब भी हम, like, whether it is going to the hotel, whether it is going in my social circle, मैं ऐसा सोचता था, यार इस पर्सन को थोड़ा दूर ही रहो, इसको है ना अमीर लोगों से थोड़ा सा एक बड़ा ही अजीब दिक्कत है, ही डजंट लाइक, ही इज जेलस ऑफ रिच पीपल. तो आई यूज्ड टू लाइक, जब मैं अच्छे क्राउड में हूँ, अब वो बचपन का दोस्त था, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा ये कर लेते थे. दैट्स हैपेंड, दैट हैपेंड विद मी व्हेन आई हैड अ ह्यूज हेट्रेट, lot of jealousy towards the men who are much better than me, who are successful than me, who are natural than me. तब तो गेम वगैरह पता भी नहीं था. तो मैं, मेरे अंदर वो एक घृणा होती थी उन लोगों के लिए, मेरे लिए एक घृणा होती थी लड़कियों के लिए उस समय. तो उस समय ऐसा होता था कि कॉलेज में, 10-12 साल पहले की बात है, तो होता ऐसा था कि those people didn't used to call me. At that time, I didn't used to understand as per my social intellect why I'm not welcome, why I'm, because the type of vibes I am giving, because the reason was I was operating from this kind of emotions. Guys, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस नो कुछ टाइप करना. ऐसे मेरे अंदर बहुत ज्यादा एंगर लड़कियों के लिए, बिकॉज दे वर नॉट गिविंग मी टाइम. मेरे अंदर बहुत ज्यादा शेम सेक्सुअलिटी को लेके, मेरे अंदर बहुत ज्यादा ग्रीफ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा जेलेसी, जेलेसी टुवर्ड्स द गाइस. एंड पीपल एट दैट टाइम यूज्ड टू सेंस दैट. सो अगर वो है, तो वी हैव टू लेट गो दोज इमोशन. जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि आई वॉज ऑन द डेट विद अ गर्ल, मैंने गेम करना शुरू, एंड ऑल द फोर थिंग्स कम फ्रॉम द फोर, और एवरीथिंग कम्स टू दिस फोर थिंग. द फोर थिंग इज सेल्फ इमेज, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. पहले तो हमें चीजों का एक्सेप्ट करना है, ये प्रॉब्लम है. जिसका ये प्रॉब्लम है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबसे, उसका कुछ नहीं हो सकता भाई. You have to accept certain kind of things, you have to accept, let go. Once you are aware of it, you accept it, and then you can let go. And EFT is not a technique to develop, condition, or reprogram. It is just a technique to let go, to release whatever you have holding on, so that the mental block you have been stuck, you get into that solution. Okay, now this is not my problem. मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसा भी दिया था कि क्या होता है ना, कि हमारे लाइफ में, आई कैन डू इट, आई एम नॉट वर्दी, आई मस्ट बी परफेक्ट, आई मस्ट, ऐसी कुछ चीजें होती है, लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस होते होते हैं. वो एक्सपीरियंस उसको हम इससे जकड़ के बैठ जाते हैं हमारी पास्ट आइडेंटिटी से, कि हम उसको लेट गो नहीं करना चाहते. एंड वो पेन, वो दर्द लेके निकलते हैं, इन द होप्स टू फाइंड समवन बेटर. इफ यू आर नॉट हैप्पी, हाउ द हेल यू कैन मेक अदर पीपल हैप्पी? दैट सिंपल. If you are too much jealous, insecure, how can people vibe with you? This is like always some kind of insecurity and jealousy. If you are too much of stingy, how the generous people will come into your life? Because at the core, you attract. You don't attract who you are. You don't get who you want. You don't get who you are. You get who you are. And I said that is not also true. You only attract the person at the frequency you vibrate, even if you might be deserving. But at your inner issues, there are certain dangerous level of conflicts. You will find that you are always attracting the unhealthy
low self-esteem people, the people who have such kind of issues in life, serious level of issues, अगर आपके लाइफ में है, आप देखेंगे कि एक सिमिलर पर्सनालिटी ऑफ ट्राइड के ही लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज एट द कोर, एट द बॉटम कोर ऑफ द इमोशंस, it's always the same attract each other. The person who is very narcissistic, who is very self-centered, selfish oriented, and who believes in high level of domination will always attract the girl who loves to be a victim, because she loves to be in that victim zone. He can't never. That's the hardcore principle. Then I explained you कि कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी. I give you my example. When I was गेम में था, थोड़ा बहुत रिजल्ट भी थे मेरे पास में, फिर एक लड़की ने मुझे ऐसा बोला था कि यार तुमको ऐसा लगता है कभी कभी देख के कि तुम्हारे अंदर बहुत पेन है, बहुत तकलीफ है, और तुमने उन चीजों को छोड़ा ही नहीं है, तुम अभी भी वही चीजों में अटके हुए. एट दैट टाइम आई क्लिक, या मे बी आई हैव नॉट स्टिल कम आउट ऑफ द पास्ट. I have not come out with the same emotion. This was, I was telling, you don't attract who you want, you attract who you are. Then I said that this is also not true, because आपका एक interpretation का भी एक limitation होता है. Then we talk about you attract someone at the frequency you vibrate. If your self-esteem, self-love inside you is very good, then definitely, of course, the inner, outer, and inner game both plays a role. It's like inside, outside, and outside, inside work. Then I explained you regarding something about the belief. If you don't know about the belief, I would suggest you go through program. गेम में एक होता है कि गेम में हम जब बाहर जाते हैं, वी ओनली डेवलप द ईगो, वी डोंट डेवलप समथिंग, नाइदर वी सॉल्ट आवरसेल्फ. जो हमने कल बात की थी, किसी ने डे वन नहीं देखा है तो डे वन देख लेना. द एंड द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, आई वुड सजेस्ट ऑथेंटिक कन्वर्सेशन इज वन ऑफ आवर ग्रुप. ज्यादातर इंपॉर्टेंट लिंक्स वही शेयर होती है, और यू कैन ज्वाइन कॉस्ट ऑफ ग्रुप कैसीनो और ट्राइब, वहां पे भी लिंक शेयर होती है. तो हम क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं, मास्क लगाते फिरते हैं. अच्छा, ये लाइन, ये स्ट्रक्चर, ये मेथड, ये रूटीन, इसने ये कहा, इसके लिए ये वर्क किया, तो हम उसको शुगर कोट करते रहते हैं. दैट्स हाउ वी ट्राई टू बिल्ड द गेम विद वेरियस कैंट रूटीन, वेरियस स्ट्रक्चर्स, वेरियस नेक्स्ट, पुश टू रिटीज, बैंटर, क्वालिफायर, नेक्स्ट, एवरीथिंग. और वो देखता है कि वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अच्छा काम करता है, बाद में काम नहीं करता है, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फेक है. एक फेक की इमेज बन जाती है. अगर आप जो बाहर बोल रहे हो अंदर आप यकीन नहीं करते हो, तो आपके अंदर कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉब्लम है. कभी आप लाइफ में ऐसे पर्सन से मिले हो इन लाइफ, जस्ट मिनट गाइस, आई हैवंट चेक. कभी आप लाइफ में ऐसे पर्सन से मिले हो, जैसे एक मेरा दोस्त था, एक एग्जांपल देता हूँ. और वो बात बात करता था, और मैं मैं उसके किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि वो जो बोलता था वो हमेशा बहुत इजी, मतलब वो उसको, उसकी बातों को सूट ही नहीं करता था. वो जो बोलता है वो काफी फेक लगता था, काफी गिमिकी लगता था, काफी ऐसा लगता था कि ही इज ट्राइंग टू मेक समथिंग, ही इज ट्राइंग टू जनरेट अ पर्सोना. अभी वो उससे बात करो तो वो ऐसा बात करेगा, यू नो राज, यार क्या है ना, अपन जाते हैं एंड लाइक, मैंने बोला ब्रो, व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग सो मच, व्हाई आर यू ट्राइंग टू शो मी एंड लेबल मी समथिंग. और जो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता था, और वो लगता था कि यार ये नहीं बैठ रहा है, बिकॉज ही वॉज नॉट कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंस इज वन ऑफ द थिंग दैट रियली मैटर्स. व्हेन योर आउटर गेम एंड इनर गेम बोथ आर अलाइंड, व्हेन योर सेल्फ टॉक, your conversation with your own self, your inner inside is exactly aligned with what you do outside, that's where the congruency comes. दो पर्सन है, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, दो पर्सन है, एक बाहर जा रहा है, कुछ ट्राई कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है, इसके लिए वर्क कर रहा है, सेम चीज इसकी ये कॉपी कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है, इस ये बहुत फेक लग रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो बोल रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं जा रहा है उसको. देन we talk about, like to take a recap. Now we just finish with the recap. You have to just keep this diagram in mind. This one, इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. लोअर लेवल के इमोशंस आपको लोअर लेवल पे वाइब्रेट कर देंगे, आपकी वाइब खराब हो जाएगी. The type of people will be coming into your life will be like that. One of my relative always says, जो वो मिलता है वो ऐसे ही मिलता है, you know.
जो भी मेरे जिंदगी में आता है वो साला वो ऐसे ही आता है, बिकॉज द टाइप ऑफ वाइब्रेशन ही गिव्स व्हेन ही मीट इज द सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन। प्यार, जो लड़की मिलती है वो ऐसी करती है मेरे साथ, बिकॉज दैट्स हाउ इट कम्स, बिकॉज at unconscious level he is doing or behaving something which is bringing the same circumstances and same situation again in his life. Let me give you an example from my life. So when I was in college, one of my college faculty, a program head, tried to molest one of my female friend, and I am not sure whether it is a true or false, whether it is something like their own controversy. I'm not sure about that. But one of my friend, Rami was telling that girl, she said, let's take the most common name, Pooh. So, Pooh, तेरे को पता है तेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? इतनी लड़कियां थी कॉलेज में, इतने लोग थे, सिर्फ तेरे साथ में ही ऐसे हादसे क्यों होते? कहीं ना कहीं तू एक अलग लेवल का वाइब देती है, उस वाइब की वजह से उसी तरह के सिमिलर किस्से होते रहते हैं तेरे लाइफ में. इट्स ऑल द पैटर्न्स दे हैव क्रिएटेड, एंड such patterns have become certain blocks. Now how to let go and release those blocks, because she was vibrating at that level. If you do lot of if you are a lot in spirituality, consciousness and other things, you will come to understand like how these people can feel. We will proceed further. So this was all about day two. Now we will understand that there are certain emotion, and we will try to understand certain emotions on the base when it comes to sexuality, when it comes to being a man, when it comes to self worth, and ये इमोशंस आपको होल्ड डाउन करते हैं. इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से इमोशंस आपके हैं. So, as I told you, EFT is not about conditioning and programming your mind. It is like just the negative blocks that आपने ऐसे पकड़ के रखा है, ये होगा ही नहीं. जैसे एक मेरा ब्लॉक था गेम में आने के पहले. There was one block. There was one block. Guys, कोई कह रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है. Guys, can you please check? क्लियर है? ओके. तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक मेरा बिलीफ था कि लड़की नाम का फैक्टर अपने लिए है ही नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं था और कुछ पता भी नहीं था करना क्या पड़ता है. वो एक मेरा ब्लॉक था, मेंटल ब्लॉक. तो मैं वही सोचता था कि यार जस्ट पीपल आर गुड, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट. तो गेम भी नहीं पता था, कुछ नहीं था, तो मैंने मान लिया था ऐसा होता है, ऐसा रहता है. और एक ब्लॉक था. एक ब्लॉक ऐसा भी था कि मेरे जिंदगी में जो भी आएगा वो एक दिन मेरे को धोखा ही देगा. मतलब वेदर इट इज इट्स नॉट अ गर्लफ्रेंड, बट इट माइट बी अ क्लोज फ्रेंड, वेदर इट माइट, वो मेरे साथ में कोई बड़ा षड्यंत्र खेल देगा एक दिन. ऐसा एक मेरा ब्लॉक था, और ऐसा मेरे साथ में होते रहता था बार 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 बार. आई यूज्ड टू फॉलो इनटू द सेम पैटर्न. सो आई इट वाज अ ब्लॉक दैट पीपल, you don't have to be too open to expressive, no matter how close you are with someone. You must hold something, because वो कभी ना कभी आपको धोखा ही देगा. ऐसे कुछ ब्लॉक्स तैयार होते हैं, और ऐसे ब्लॉक्स आपकी रियलिटी शेप करते हैं. When it comes to, certain people have same day pull, same day close. मतलब ओपन किया, धाड़ धाड़ हो गया, और क्लोज हो गया विद इन वेरी फ्यू टाइम. तो मेरा ऐसा एक ब्लॉक था, गेम में आया था 2021 में. ऐसा मेरे साथ में नहीं होता है, मुझे टाइम ही लगेगा वो, मुझे टाइम ही लगेगा. एंड ट्रस्ट मी, आई नेवर हैड अ सेम डे पुल. मेरे जितने भी हो गए, डे 2 में हो गए, डे 3 में हो गए, डे 4 में हो गए, डे वीक में होने हो गए, एक साल बाद हो गए. सेम डे पे आज तक नहीं हुआ. लेकिन लेकिन मैंने जब आइडेंटिफाई किया कि ये भी एक लिमिटेड ब्लॉक है, we create our own block with our limited level of perceptions, limited level of experience, limited, and the way we interpret through the beliefs we already have. ये 10 इमोशंस है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है आपके इमोशंस कौन से. एक होता है फियर. कुछ लोगों के घर में कूट कूट के भरा होता है फियर. फियर कैसा होता है? लेट मी गिव यू एग्जांपल. मेरे फियर, इनसिक्योरिटी, लैक, जेलेसी, पहले 10 समझ लो कौन कौन से.
फिर मैं एक एक का एग्जांपल देता हूँ, ये गेम में रिलेशनशिप में कैसे कैसे होते हैं। एंगर, गिल्ट, शेम, लिमिटिंग बिलीफ, रिवेंज, हिट रेट, मतलब वो भी होता है, और जेनेटिक ट्रायड। तो एक एक बिलीफ को समझते हैं। फियर, जैसे फॉर एग्जांपल, डेफिनेटली द मोस्ट कॉमन इज अप्रोच एंजाइटी, ही इज इंटरेस्टेड बिकॉज शी माइट फील रिजेक्ट। थ्रेट, थ्रेट हमेशा होता है उनको। फियर दैट गर्ल विल मेक अ सीन, या ऑफ कोर्स ये मुझे भी था, स्टार्टिंग में मुझे भी था। एक बार मैंने वो सेट ओपन किया था तो सेट चिल्लाने लग गया था। तो ये मुझे 10-15 दिन तक तो था उस वो दिमाग में, क्योंकि मुझे उसका चिल्लाने वाला बीएफ आ गया था, हाँ ऑफ कोर्स हस्बैंड आ गया था। ऐसी चीजें होती है तो वो ब्लॉक बैठ जाता है, एक मेंटल ब्लॉक बैठ जाता है। पेरेंट्स आ जाएंगे, ये वो। सो दीज आर सर्टन काइंड ऑफ ब्लॉक्स, यू हैव टू लेट गो दोस ब्लॉक्स, अदरवाइज द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट विल कीप ऑन हैपनिंग। एक पर्सन था, वो बोलता है, वो हमेशा बोलता था 3-4 महीने में ये मैटर हो गया, वो मैटर हो गया। मैंने बोला देखो वो मैटर होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ में इतने सारे क्यों होते हैं? फिर जब मैं उससे मिला तब मुझे रियलाइज हो गया कि यार इसका थोड़ा सा बिहेवियर ही ऐसा होता है, ये मैटर अपने तरफ खींच लेता है। ही हैज दैट सम काइंड ऑफ पर्सोना टाइप, पता नहीं क्या बोलते, पर्सोना तो नहीं बोल सकते। तो एक फियर से एग्जांपल देता हूँ। एक बम्बल पे एक मेरा एक स्टूडेंट ही था, स्टूडेंट काइंड ऑफ, उसका मैसेज आया कि लड़की बुला रही है, ये वो। मैंने बोला तो जा भाई, फटाक से जा। नहीं ब्रो, ये स्कैम भी हो सकता है। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे स्कैम हो सकता है? स्कैम हुआ है क्या तेरे साथ में? तो उसने एक इंसिडेंट बताया कि भाई मैंने एक लड़की के साथ में वीडियो चैट वगैरह की थी इसके पहले, बहुत चीजें जल्दी फास्ट हो गई, फास्ट, टू फास्ट हो गई 1-2 घंटे में। और उसने फिर मेरे फेसबुक पे अपलोड करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया। मेरे को बोल रही है तो पैसे देना पड़ेगा। फिर वहां से किसी का फोन आया जो नकली पुलिस वाला बन के कर रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ फटाफट चीजें होती है ना, तो मेरे को वो डर आ जाने लगता है, वो इंसिडेंट आने लग जाए, तो मेरा एक मेंटल ब्लॉक बन गया है कि यार ये चीजें फटाफट नहीं होती ना। बिकॉज उसके लाइफ में कुछ इंटरप्रिटेशंस ऐसे आए हैं। तो दिस इज वन काइंड ऑफ फियर। इफ यू हैव दैट, यू हैव टू जस्ट क्लियर दोज ब्लॉक्स। जो होना है वो होगा, पर अननेसेसरी वो बर्डन लेके क्यों चले? Then we'll talk something about the insecurities. So a lot of people have do certain insecurities about themselves, about something in life. Insecurity किसी भी चीज को लेके हो सकती है। आ, एक हमारा एक दोस्त था, उसको हम बहुत से, हाँ इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग मनी हो सकती है, इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग फैमिली हो सकती है। मैं मेरे बचपन की इनसिक्योरिटी बताऊँ, कैसी इनसिक्योरिटी थी। सो आई वाज इन द टॉप मिशनरी स्कूल ऑफ ऑफ माय सिटी। एंड अभी अभी ऐसा तो नहीं था कि वी वर पुअर, बट वी वर वेरी हम्बल पीपल। हम्बल पीपल, माय पेरेंट्स वर वेरी हम्बल पीपल। And my father being a follower of Mahatma Gandhi, and he walks on the principles, he teaches simple living, high thinking. And what happened na, my father used to drop me with cycle, साइकिल से छोड़ देते थे स्कूल, और मैं पीछे बैठता था। और मेरे साथ में जितने लोग आते थे ना, वैसे उनके पेरेंट्स उनको कार में वगैरह छोड़ते थे। तो मुझे वैसे काफी इनसिक्योरिटी होती थी। मैं मेरे पापा को बोलता था नहीं नहीं, तुम वहां रहो, मैं यहाँ से पैदल चले जाऊंगा। और पापा बोलता है यार मैं छोड़ दूंगा ना, वहीं से तो जाना है। अब मैं कैसे समझाऊं उनको कि मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी है उन लोगों से जो। एंड इट हैपेंड मी इन चाइल्डहुड। ये ऐसी कुछ इनसिक्योरिटीज होती है। सेम अप्लाइज विद डेटिंग, डेटिंग में भी ऐसी इनसिक्योरिटीज होने लगती। तो फॉर एग्जांपल आई, गेम में तो नहीं हुई, मैं गेम में काफी नार्सिस्टिक बन गया था मैं। लेकिन जो एक इनसिक्योरिटी थी वो कैसी थी कि मैं ट्यूशन में था, और अब तो मैं शॉर्ट था, लड़की थोड़ी सी टॉल थी मुझसे, ज्यादा नहीं। और हमारी बात बात हो रही थी, तो अचानक से कोई बंदा आ गया जो काफी टॉल था। तो मुझे वो बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं और ऐसे थोड़ा सा ऊंचा होने की कोशिश करूं, या फिर अगर हम साइड से चल रहे हैं तो मैं थोड़ा फुटपाथ पे चलूं। यू नो, इनसिक्योरिटी, this kind of insecurity, if you have, identify, be aware of it,
बिकॉज इट विल किल योर वाइब, इट विल मेक योर वाइब डेड। दूसरा एक और फैक्टर है, फिर हमको ये भी आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू नोट ऑल दोस डाउन। आपको आपकी लिखनी है, किसी और की नहीं। लैक, हमेशा कुछ लोगों को लगता है कुछ ना कुछ कमी है भाई उनमें, ये कम है, ये नहीं है, जिंदगी में इन चीजों की बहुत कमी है। एंड किसी के लिए वो सोशल स्टेटस हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। एक हमारा दोस्त था, काफी अच्छा डीएम वगैरह कर रहा था। तो उसको लेके गया हम क्लब में, करो ना यार। और टॉयड वार्ड में लेके गए, टॉयड में बस फॉरेनर फॉरेनर बैठे हैं, अमीर लोग बैठे हैं, मस्त चिल कर रहे हैं। मैंने बोला अभी करो ना यार, तुम सुबह से इतना अच्छा कर रहे थे, अभी क्या हो गया तुमको। फिर वो क्या बोला मुझे आके कि यार मेरे को है ना वो पिक्चर का वो सीन याद आ गया। मतलब कौन से, वो सुपर 30 ऋतिक रोशन की पिक्चर है ना, बोले वो नहाता भी नहीं, ऐसा ऐसा मेरे को लगा है कि मैं एकदम ऐसी बहुत ऊंची जगह आ गया और मैं इनके इसमें ये नहीं करता। मैंने बोला ऐसा क्यों। बिकॉज ब्रो मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों में रहा नहीं हूँ, और मेरे को लगता है कि ये सोसाइटल स्टैंडर्ड्स वगैरह है, उसको वो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत कम हूँ इनसे। And that's a way he started operating. So certain people do feel that this is lacking in my life, this is I'm lacking with social intelligence, I'm lacking with good standards। वो उनको हमेशा कुछ ना कुछ लैक होता है। this is a major thing, lot of people fall into this trap, jealousy। you have to identify, is jealousy or drag, because these are lower level of emotions, they can hold you, they can suck everything out of you। अभी किसी किसी के लिए जेलेसी ये भी होती है भाई, कि साला मेरे साथ में होता था 2 साल, मैं तो साला अला इतना कर रहा हूँ, इतना गेम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, और लोग भाई पेल के पेल जा रहे हैं, लाइक डूइंग अमेजिंग। मेरे को काफी जेलसी होती थी उन लोगों के प्रति। मेरे को ऐसे जेलसी होती थी उन लोगों के प्रति जो बहुत नेचुरली गिफ्टेड, जो कुछ नहीं सीख रहे। ये ये एक इमोशन है, डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन इट। मैं जिससे बिजनेस कोचिंग ले रहा हूँ वो कहता था पहले मुझे बाकी बिजनेस कोचेस से बहुत जेलसी होती थी। मैं जब भी देखता था ये विवेक बिंद्रा को, ये संदीप माहेश्वरी को, मैं उनके पोस्टर भी दिखता था तो मन में एक नेगेटिव टॉक शुरू कर देता था। मैंने बोला क्या, बोले हाँ, मतलब वो तो इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग सच अ गुड वर्क। बोले नहीं यार पता नहीं, फिर मैंने आइडेंटिफाई किया ये मेरा इशू है, इनका नहीं। तो दिस, identify if you have this, because we'll understand all the emotion whether you are jealous। Sometimes the jealousy is about the particular person also, sometimes the jealousy is about लड़की ने आपको छोड़ दिया और किसी और के पास में चली गई, और वो आपसे मिल गया, आप हो गए जेलस। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ। हम नाइट गेम वगैरह कर रहे थे, देन गर्ल स्टार्टेड बीइंग वेरी फ्रेंडली विद मी, वेरी टची विद मी, शी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम, और 15 मिनट देख रहा हूँ भाई कोई और ही किसी और के साथ में ही मेकआउट कर रही है। तो मैं, और वो बंदा आके मेरे को पूछ भी रहा है, और और वाहियत चीज ऐसी है कि वो बंदा मेरे को पूछ रहा है भाई मैं कैसे आगे बात कैसे बढ़ाऊं, कैसे ये करूं। एंड मैं उसको समझा रहा हूँ बिकॉज ही वॉज नॉट इन गेम, ही वॉज जस्ट अ नेचुरल टाइप ऑफ गाय जो वहां पे फन ले रहा है। मैं उसको भले ही बता रहा हूँ सब सही सही, लेकिन अंदर से मैं बहुत जेलस फील कर रहा हूँ उसके लिए, कि ऐसा कैसे साला मेरे साथ पहली बार क्लब में आया और मेरी बंदी पेल के लेके गया। तो दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी इमोशन, और वो लड़की ने भाप लिया, ये बहुत जेलस हो जाता है यार। So this can happen with you. Identify if it is happening with you, because it can kill your vibe. Let's proceed further. Anger। जिंदगी में जो लोग अपने स्ट्रगल से बहुत एडिक्ट होते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, जिन्होंने बहुत घिसा है अपने आप को ग्राउंड लेवल पे, तो पता है उनमें एक एक तरह का एंगर होता है। अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं चली तो वो अपने आप पे ही इतना गुस्सा होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ गेम में कर रहा था, सेट थोड़ा बहुत चला, दूसरे दिन फ्लेग हो गया, और
मैं सोच रहा था मैंने कुछ तो भी गलत किया, मैंने कुछ तो भी गलत किया, और मैं बैठ के अपने आप को देख के ही लाल होए जा रहा हूँ। गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन द गिल्ट। गिल्ट इज अनदर थिंग। गिल्ट, आपने कुछ कर दिया और उल्टा घूम गया और उसका आप रिग्रेट कैरी कर रहे हो। एंगर एक ऐसा होता है कि मैं कॉलेज में था, तो मुझे है ना, उस टाइम पे ऐसा था, नया नया कॉलेज था, तो मैंने बोला चलो इंप्रेशन मारते हैं, कुछ स्वैग मारते हैं। और मैंने एकदम, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप एग्रेसिव बात करोगे, बहुत ऐसा पुकार रहोगे, तो आपका इंप्रेशन अच्छा गिरेगा। तो मैं ऐसा आंखें बड़ी करके ऐसा लाउड वॉइस से सब बात बात करता था। और तो जब मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा था, मैं जो वर्कशॉप कर रहा था, तो वो बोले कि ये बोल रहा है, इतना गुस्सा क्यों है तुमने। मैंने बोला आई सर, आई थॉट दिस वर्क्स। बोले नहीं, कोई लीडर नहीं है, तो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, पीपल कैन सेंस दैट यू आर टू मच एंग्री, एंड यू नो यू आर नॉट एंग्री ऑन पीपल, यू आर एंग्री ऑन योर सेल्फ। मेरी बात सुनो, मेरी मेरी फरमाइश है, रुको। सम पीपल रियली डू गेट एंग्री ऑन देमसेल्फ एज वेल एज समटाइम दे गेट डू एंग्री ऑन वुमन। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। मैंने एक सेट किया था उनके पास में, बॉयफ्रेंड आ गया। बॉयफ्रेंड आ गया, फिर वो पूछा उसको क्या बात कर रहा था। अरे कुछ नहीं, वो लड़की बोल रही कुछ नहीं, वो उसने आके मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। ऐसे कैसे बोल दिया। और वो चढ़ रहा है उस बंदी पे एकदम पुकार तरीके। और वो लड़की, उसकी रोने जैसी शक्ल हो गई, यार छोड़ ना, जाने देना। विकी नाम था उसको, विकी तमाशा मत करना यहाँ पे, साले निकल यहाँ पे। और वो फिर उसके बाद में वो दोनों बहुत इंटेंसली झगड़ा करने लग गए। तो मैंने बोला भाई इसके अंदर कितना गुस्सा है, कितनी लाइट सी और प्यारी सी बात को इसने इतना बवाल कर दिया। दिस दीस आर सर्टन, यू नो, कुछ कुछ लोग छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा हो जाने लगते हैं, क्यों ना। इफ यू रिएक्ट मोर यू लूज मोर। द पीपल हुज एंगर इज नॉट इन देयर कंट्रोल आर लाइकली टू get into the reactive mode. It hampers in the game. If you have that, identify, be aware of it. फिर हम उसको रिलीज कैसे करना। कुछ लोगों को भाई उनके ऊपर ही बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यू नो। एम्बिशियस पीपल, हाईली एम्बिशियस ड्रिवन पीपल आर लॉट एंग्री ऑन देमसेल्फ। If you are in that self-help mode, billionaire mode, the black pill mode, I will give you an example. पूना का ही किस्सा है। पूना का एक किस्सा है। The guy was already very good in dating. He was getting lot of sets. तो उसके किसी बंदी को किसी और गेमर ने ही अप्रोच कर दिया, and he got too angry. He started calling me at 2 or 3 a.m., 4 a.m. in night. साला ऐसा ऐसा है, उसके ग्रुप से निकाल उसको, ये वो। I was like, भाई इतना गुस्सा क्यों, कुछ हुआ है क्या। नहीं नहीं नहीं, मेरा सेट बर्बाद कर दिया साला, आज तो मैं मारता ही, बोले मैं सुबह से बहुत पी के हूँ। बोला इतना गुस्सा इतना गुस्सा। तो इफ यू हैव दैट, आइडेंटिफाई इट, बिकॉज एट द कोर द वुमन who doesn't like it, well, like quality people will be like back off, who has a healthy self esteem. I try to identify what are the drives that give you anger. कभी कभी ऐसा होता है, इस पर्सन का गुस्सा देख लिया तो वो बहुत एंगर आ जाएगा। कभी 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 वो पर्टिकुलर पर्सन को लेके होता है। गिल्ट, गिल्ट ये होता है ना ब्रो, सबने कोई ना कोई गलती की है, कुछ सही करने जा रहे हैं और कुछ। व्हाट टू डू इफ द गाय स्टार्ट फाइटिंग विद योर, शुड यू अप्लाई या ब्रो। और फाइट अपोलोजाइज कर दो ना, कहाँ लड़ेंगे। इसका सवाल था। if the guys what to do if a guy starts fighting with us, should we apologize or fight back. A man must know to fight, but that doesn't mean he has to fight. You must learn martial arts, but the purpose of learning martial arts is not to um, go and fight on the street, bro. If you have known the famous person Andrew Tate, he has 84 fights, 84 fights में 23 वो नॉकआउट्स पे जीता है। And he says, not even single fight or single thing I have done on the street in my entire life. If a very stupid, weird, and a skinny man also comes to me and holds my collar, I will apologize to him because I know my worth. I am not here to prove the worth on him. मैं उसको एक पंच में नीचे गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों गिराऊं भाई।
मेरा लेवल अलग है, मैं 23 टाइम्स नॉकआउट चैंपियन रहा हूँ। व्हाई नेसेसरी गेट इनटू दिस ट्रबल? वो उसके लिए करना है, वो लोगों को पेलने के लिए नहीं करना है। ऑफ कोर्स, अगर थोड़ा सा बोलने से वो मैटर निपटता है, व्हाई गेट इनटू यू ड्राइविंग टू द लोअर लेवल ऑफ इमोशंस? गिल्ट, गिल्ट इज समथिंग वी विल टॉकिंग अबाउट। पहले ऐसा था, गेम में आने के पहले, तो जैसे लाइक ना, काफी पॉर्न, मास्टरबेशन एडिक्शन काफी ज्यादा था। लेकिन ये था कि समाज में प्रवचन बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं, हम उपदेश बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद पढ़ रहे हो उस टाइम पे। इजंट इट अ जोक? मतलब, हाँ। सो स्वामी विवेकानंद पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़े हैं, और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और पौन देख रहे हैं रात को आके, और यहाँ पे लोगों को उपदेश भी दे रहे हैं कि अरे ये सब फालतू चीजों में नहीं गिरना चाहिए, लड़की के पीछे कहाँ भागते, करियर बनाओ अपना, ये करो, विवेकानंद पढ़ो, कलाम पढ़ो, एज टू गिव दिस ऑल द काइंड ऑफ एडवाइस बिफोर कमिंग इनटू गेम। और रात को और सबसे ज्यादा पॉन एडिक्ट मैं ही था उस जमाने में। एंड उसके बाद में जो गिल्ट आता था, अरे यार क्या कर दिया मैंने, कितना वाहियात इंसान हूँ, इट इट क्रिएट द गिल्ट। गिल्ट इज समथिंग दैट यू हैव डन एंड यू हैव लेटर इट फाइंड आउट योरसेल्फ कि यार ये कुछ तो भी बेकार कर दिया मैंने, उसका एक गिल्ट आता है। गिल्ट इज द थिंग दैट ब्रो, इट्स लाइक इट्स होल्डिंग योर ग्रोथ, इट्स होल्डिंग योर वाइब्रेशन। मैं जिस यहाँ से ईएफटी सीखा था, तो उनके एक पार्टी, वो वहां के मैम ने एक स्टोरी बताया था। वो स्टोरी ऐसी थी कि उन्होंने कहा था कि एक आदमी था हमारे पास में, क्लाइंट आया था, वो 2 साल से, 1.5 साल से वो जॉब पे ही नहीं जा रहा है, और उसको गवर्नमेंट जॉब था, डिपार्टमेंट अच्छा था, सब सपोर्टिव थे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? एक इतना बड़ा आदमी वो जा ही नहीं रहा है, और बस सुबह से रात तक पिए ही पिए जा रहा है, और कुछ भान नहीं उसको, कुछ नहीं, अचानक, और वो एक सब चीजें अचानक से होने लग गई। तो वो हमारे पास में पर्सनल कंसल्टेशन कॉल के लिए आया, पर्सनल कंसल्टेशन कॉल के लिए आया। उसने बताया कोई प्रॉब्लम है क्या, बीवी के साथ में कुछ है क्या, बच्चों के साथ में है क्या, कोई कर्जा है क्या, फाइनेंशियली कुछ इशू है क्या, क्यों, फिर ऐसा क्यों हो रहा है दिमाग। तो उसने उसका एक डार्कर ट्रूथ बताया। बोलते क्या है ना कि हमारा फ्रिक्वेंटली चलता था कभी कभी पीना। तो हुआ ये कि अब मैं रात को 1-1:30 बजे आया पी के, और कभी कभी पीते थे हम 3-4-6 महीने में, ऑफिस ऑफिस का पार्टी रहे, वो आप पर्सन स्टोरी सुना रहा है, वो मतलब वो मैम स्टोरी सुना रही है हमको, जिनसे मैंने ईएफटी वगैरह सीखा। और बोले कि आ, वो घर पे गया, और 1-1:30 बजे गया, उस वो क्लाइंट की मम्मी ने बोला कि मुझे सीने में थोड़ा कुछ तो भी हो रहा है, दवा खाने वगैरह चलते हैं क्या। अब मैंने सोचा है ये यार मेरी बुड्ढी का रोज का ही रहता है, ऐसा ऐसी ही करती रहती है ये, यही होता है। और मैं सुबह 6-7 बजे उठा, देखा तो मम्मी गुजर गई। और उसमें उसको ऐसा गिल्ट आया कि मैं कुछ कर सकता था, मैंने नहीं किया भाई। मैं मैं मतलब उसको एक बहुत भारी लेवल का गिल्ट आ गया, और इसके वजह से, वो गिल्ट के वजह से उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया, वो सुबह शाम दिन रात पी रहा है। उसको अभी वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा, उसको लगता है कि उसी ने मारा उसके माँ को। तो ये एक तरह का गिल्ट है, वो जब तक वो रिलीज नहीं होगा ना, तब तक ये नहीं होगा। एक पर्सन है, उसने मुझे फोन किया था, उसने एक लड़की, एक सेट वो किया था, फिर द गर्ल वाज टू मच इन लॉट ऑफ थिंग्स, हुकअप्स एंड अदर थिंग। और मुझे फोन पे बात किए जा रहे हैं, यार मैंने ऐसा चूतिया बना कर दिया, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता। मतलब वो इतना गिल्ट क्यों रखना, अभी हो गया भाई, यू हैव टू लेट गो। फिर थोड़ी देर तो नॉर्मल बात की, फिर से वहां पे आ गया। अरे मैंने बोला भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है क्या, यू हैव टू लेट गो दैट थिंग। हाँ हाँ, मैं लेट गो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई तू सिर्फ जानता है, तूने उसको वो चीज को छोड़ा नहीं है, यू हैव टू टैप, यू हैव टू
You have to let go those emotions from your body, and we will understand the science in the next session कि 11 मेरिडियन पॉइंट्स रहते हैं, उन पे हमको टैप करना है, एंड यू हैव टू रिलीज, क्योंकि जब आप अंदर से हल्के होते हो तो वाइब भी अच्छा ही आ जाता है, एंड यू वाइब वेरी वेल इवन द आउटर थिंग्स आर नॉट ऑन द पॉइंट, थिंग्स विल बी ओके फॉर यू, यू वोंट बी लाइक कैसे करूं क्या करूं, इट्स लाइक आपका वाइब सही सब सही। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, समवन इज टाइम ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ जस्ट नो टाइप करना है यार। This is about the guilt. Identify. Is there something that you have done that you are guilty about it? गिल्टी होने का जरूरत नहीं है भाई। लोग तरह तरह के बुरे काम करते हैं, घंटा गिल्टी फील नहीं होते, तुम क्यों करते हो गिल्टी फील? अब हो गया हो गया। बट सिर्फ मान के नहीं चलेगा, यू हैव टू वर्क कॉन्शियसली एंड यू हैव टू टैप ऑन ऑल द 11 मेरिडियन पॉइंट्स, ऊपर से नीचे लेके तक, नीचे से लेके ऊपर तक, और वो स्टेटमेंट रिपीट करना है। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट दीज आर 10 इमोशंस। ये 10 इमोशंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, इसलिए मैं एक एक इमोशंस पे आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। शेम। Shame is the deeper emotion tried when you believe you are rather than your action. A man feels shame about his lack of sexual experience, believing it makes him less as a man. तो एक पर्सन था, वो मुझे बोल रहा था कि मेरा पेनिस के पास में, मेरे प्राइवेट पार्ट के पास में यहाँ पे कुछ ऐसा लगा है, और जब भी वो होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि, एंड ही वॉज ऑलरेडी डेटिंग एंड रिलेशनशिप वगैरह ये, तो काफी मुझे ऐसा शर्म आती है उन चीजों की, बहुत ज्यादा शेमफुल फील करता हूँ मैं। मैंने बोला तो क्या तेरे पार्टनर ने उसको एड्रेस किया है कभी? तो बोले नहीं, एड्रेस तो नहीं किया। मतलब उसको कोई झिझक है? मतलब व्हेन यू गेट इंटीमेटेड एंड व्हेन यू गो इनटू ऑल दोस थिंग्स, नहीं। फिर क्यों? एक एक कुछ तरह का एक शेम ऐसा भी होता है कि यार, हम एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे सब ब्लेजर ब्लेजर पहन के आया था, और मेरे साथ में जो था वो चप्पल पहन के आ गया था। वो बोला है यार मेरे को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं क्या पहन के आया हूँ, और अब ये थोड़ा सा ये लग रहा है मेरे को। मैंने बोला bro, मैंने बोला तू लड़कियों के साथ में वाइब कर, ये कर, जैसे सारे सारे जमाने की लड़कियां सब छोड़ के तेरे चप्पल ही देखने वाली। नहीं नहीं यार, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के शेम होते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर यू शेमफुल अबाउट। मेरे लाइफ में शेमलेस लोगों को दिक्कत नहीं होती। हमारा एक मित्र रहता था, उसका इतना बड़ा पेट रहता था, और वो मस्त ऐसा बैठता था तो इतना बड़ा यहाँ तक उसकी शर्ट आ जाता था, और उसको शर्म बिल्कुल नहीं आती थी। वैसे वो वाहियात लगता था, बट ही वाज सो कंफर्टेबल इन दैट। मेरे मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरे कॉलेज में जाते हुए ऐसा कुछ, वो ऑयल पेंट जैसे यहाँ पे गिर गया था आते वक्त, और फिर वो रियलाइज हो गया कि ऑयल पेंट नहीं है, वो किसी कौवे ने वो पॉटी वॉटी कर दिया है, वो ब्लैक और व्हाइट कलर की। तो फिर मैं उसको ऐसे छुपा रहा हूँ, और फिर लड़की आके मेरे को पूछ रही है कि प्रैक्टिकल बुक वगैरह, और मैं सिंपल यार, जैसे वो इंसिडेंट इतना भारी हो गया मेरे लिए कि यार, एक बार मैं गिर गया तो लाइक, अभी लड़की सामने चल रहा हूँ, गिर गया, और काफी शेमफुल महसूस कर रहा हूँ, नहीं यहाँ से नहीं, इधर से जाते वो देखेगी मुझे। These are certain experiences. Are you really shameful about it? I was like, I was going couple of day, हाँ, किसी ने बोला I am going to gym couple of days wearing Crocs, counterfeit. I still approach an English girl I saw where I am hanging out with her. हाँ वो ऑफकोर्स सबका अलग अलग होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज योर्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रोज क्रॉक्स ही पहनना चाहिए। लिमिटिंग बिलीफ सम टाइम, we all have certain kind of limiting belief. Of course some people feel I'm not attractive woman, only date rich guys. These are most common limiting beliefs. Identify which are yours, जिसको तुमने ही होल्ड करके रखा है। दिस, राइट डाउन दिस। फिर उसके बाद में हमको, मुझे वो शीट भी दिखाना है। रिवेंज, हेट, किसी बदले की भावना, वो मुझे छोड़ के कहीं अभी मेरे को उसको बताना है, ये सब है तो नोट डाउन कर लो। कि कुछ लोग गेम में इसलिए आए हैं बिकॉज दे वांट टू प्रूव समवन एल्स।
कि बदला लेना है. If you are in that kind of it, you are creating a poisons. I think I can't have 9 sentence. अलग लेवल की बंदियां होती है. या लिमिटिंग बिलीफ ही है एक तरह का. अलग लेवल की बंदियां होती है just because they are खूबसूरत. Lot of times just like some people are rich not because they are rich. It's they are rich because they have been blessed to born in a fortune family. They have no struggle. So will a someone who will think that okay यार ये तो अलग ही लेवल के लोग हैं. नहीं यार ऐसा नहीं है. It is applicable, so don't take it in that way. It will create a block to you. Genetic triad. This is important thing. For me it was like हमारे खानदान में कोई साला हाइटेड नहीं है. ये एक जेनेटिक ट्रायड का मेरा ही ब्लॉक था. कुछ ऐसा भी होता है कि you will see at my family they are all everyone is doctors and professors and they are highly super class educated people, but they are very, when it comes to social things, when it comes to the ambience of game like dressing, getting peacocking. Suppose for example I got this tattoo, the hairstyle, this piercing. I One thing I realized when I was in the counseling part, and at that time I was doing therapy वगैरह, एक वन ऑन वन काउंसलर से बात कर रहा था. तो उसने क्या कहा, यू हैव डीप डाउन सम इश्यूज रिगार्डिंग योर स्टेटस एंड द वे फ्रॉम योर स्टेटस यू आर कमिंग, इसलिए तुम ऐसा बिहेव करते हो. टू सम एक्सटेंट ही वॉज राइट. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार बहुत एवरेज रहते हैं. एकदम गांव के लोग कैसे रहते हैं वैसे रहते हैं. एंड if we see my father is comes from a very humble background. Even though he might have a lot of money, but he will still live a simple 100-150 की चप्पल पहनेंगे. And they are not classical high people. Though when I went to the bigger college and started hanging out, so I was trying that okay, this is something. The genes, their genes are very good. Their family is something good. So the genetical conditioning was like, yeah, I'm not fitting into the class. I need to match that class. I need to buy. I'm not saying that it's not bad. It is not या कि आपने आपको अपलिफ्ट नहीं करना चाहिए. You have to always reach your standard. If you are in the game, then definitely you have to be that. But on the another way, you don't have to make it a mental issue. So these are 10 emotions. Now I will share you. So I think it's already 3-3. So we'll we'll talk a lot about the EFT. Then we have to do tapping also. We have to identify the blocks also. I will share you the sheets also. You have to write your own protocol also. So it will take more 3 sessions. And of course, the recording of this session will be also available on YouTube. So most common question, does EFT has any side effects? No. It really doesn't have any side effect. It really doesn't need a high level of technical expertise. It really doesn't need कि ऐसा ही प्रॉपर करना चाहिए, ऐसे अगर प्रॉपर नहीं किया तो भाई तुमको कुछ रिएक्शन हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं. डज इट हैज अ लाइक कि अगर मैं थोड़ा आधा अधूरा करूं तो यार कुछ गलत परिणाम ना आ जाए. यार ईएफटी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. यू कैन ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट इट. इट्स वाज जस्ट अ साइकोसोमैटिक थिंग. Then the second, can I practice EFT if I'm doing other techniques like Kriya, Reiki, meditation? Doing two things in similar way can affect me? No, it doesn't bother anything. For example, the people from Vipassana, the people from Isha, people from Art of Living, people from certain school of thoughts where there it is strictly mandated that if you are doing this, you do this, you don't mix or club it with something else. Can I practice that? Okay, for example, if I'm in विपा वहां पे जाके नहीं करना है. ये आपको घर में अकेले ही करना है, क्योंकि ये आपकी आपकी कुछ पर्सनल चीज है. आप थोड़ी ना गांव में और पेपर में इश्तेहार देके बांटोगे. तो इफ यू आर इन दैट, ट्राई वर्किंग अलोन ओनली. दैट्स द बेस्ट थिंग. और ऑनलाइन पे हम 2 या 3 बार, सो दैट यू गेट इनग्रेड. It doesn't have any side effect. No matter what practice you are doing, no matter what psychological treatment you are going, you can try it. It doesn't have any side effect. The second thing is
Why not have a positive statement or positive protocol while tapping instead of negative? काफी लोगों को ऐसा लगने लगता है, ऐसा मुझे भी लगने लग गया था कि यार ये सब तो स्टेटमेंट्स बहुत निगेटिव है, क्यों ना मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखूं और मैं उसको टैप करूं। नहीं, इट इज जस्ट अ क्लिंजिंग मेथड, इट डजंट लीड यू टू द एनलाइटनमेंट, इट इज जस्ट टू हेल्प यू टू ओवरकम द मेंटल ब्लॉक इफ यू आर हैविंग दैट। इसका मतलब ये नहीं कि affirmation is a very different concept, it's just that you become aware of it, you tap it so that you have that ability from inside, from your own experience, that I am able to let go this emotion which is blocking me inside, that simple। एनएलपी, एनएलपी का क्या सवाल है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। एनएलपी तो मैंने भी किया है, एनएलपी के साथ में भी कर सकते हो ईएफटी। और एक्चुअली ईएफटी थोड़ा बहुत सिमिलर कंसेप्ट एनएलपी से ही आया है। How much time it may take to let go and release a certain emotional block depends on how intense the block is। अगर आपका ब्लॉक बहुत इंटेंस है, कुछ कुछ ब्लॉक्स होते हैं ना ऐसे निकल जाता है, कुछ कुछ ब्लॉक्स को टाइम लगता है, कुछ कुछ ब्लॉक्स है ना हम पकड़ने में गलत हो जाते हैं, हमको लगता है ये ब्लॉक है, लेटर रियलाइज होता है ये नहीं ये ब्लॉक होता है। तो करते 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 आपको फिगर आउट होगा, बट डेफिनेटली यू कैन सी द इमीडिएट रिजल्ट, some results you will see immediately with 1 or 2 round of rotation, and some will take time, at least 7 days, 15 days। Now it's up to you, we can hold on a lot of things and like यार कुछ नहीं फालतू था, ये था वो था, अपने आप में माइंड में बता सकते, एक स्टोरी बताना सकते हो यार, ठीक है देख लिया वो हो गया, कुछ नहीं करोगे और वैसे ही रहोगे। there's something, if you know it, use it wisely, use it, train it, and condition yourself now। uh, I will show you some sheets also regarding, because we have to just wrap it up। डे 3 हम करेंगे फ्राइडे को, January 10th, डे 4 11 को, और डे 5 12 को। व्हाट वी विल कवर ऑन दिस डेज: हाउ टू प्रैक्टिस ईएफटी एंड गेट योर प्रोटोकॉल्स डन, वेरियस बिलीव्स दैट नीड टू ब्रिंग, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको बोलने हैं। सम स्टेटमेंट्स आर कॉमन, यू मी हम सब हम एक ही फैक्ट्री के मटेरियल है, तो बहुत सा ऐसा होता है कि हम मेरे जो बिलीव्स रहे होंगे वो उसमें से 30-40% बिलीव। हाँ, टाइमिंग अपडेट कर दूंगा, फ्राइडे को हम रात को लेंगे, इट विल बी लाइक अराउंड 9-10 रहेगा, इफ देर इज नो बुट कैम्प इन बैंगलोर एंड सॉरी पूना एंड मुंबई, बट दीज आर ऑल टेंटेटिव। और सैटरडे संडे यही टाइम रहेगा, 1 या 2 बजे। दिस इज समथिंग। हाँ, डे 4 को अंडरस्टैंड द टैपिंग पॉइंट्स, आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे टैप करना है वो इंपॉर्टेंट है, कितने राउंड्स लगाने हैं वो इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट पे कितनी बार टैप करना है वो इंपॉर्टेंट है, हाउ टू टैप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मेरिडियन पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट। ये हम डे 4 पे सीखेंगे। डे 5 पे हम एक प्रैक्टिकल ये लेंगे, वेर यू ऑल्सो टैप, आई विल यू ऑल्सो टैप, एंड 1-2 राउंड्स, एक 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 प्रोटोकॉल हर इस पे। लेट मी शो यू समथिंग अबाउट द प्रोटोकॉल लिस्ट। एक शीट दिखा देता हूँ, यानी यू गेट द क्लियर परस्पेक्टिव। These are some most common belief I believe that everyone has। ये शीट में शेयर कर दूंगा, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, नहीं है नहीं। एएफटी प्रोटोकॉल्स, हाँ ये शीट्स में शेयर कर दूंगा, अभी तो थोड़े 1-2 मुझे करेक्शंस करने हैं इसमें। ये इनसिक्योरिटी ये तुमको भरना है, तो गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट, ये तुमको फिलअप करना है, और वो फिलअप करने के बाद में मोस्ट कॉमन बिलीव्स का मुझे शीट नहीं मिल रहा है, आई थिंक सो। हाँ, दिस इज समथिंग, ये फियर, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द नंबर ऑफ एग्जांपल रिगार्डिंग एवरीथिंग। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, हाउ दिस इमोशन क्रिएट्स द मेंटल ब्लॉक, ये थोड़ा सा बताया, नो यू डोंट गेट अलाइन, व्हेन यू आर नॉट अलाइन लाइफ बिकम्स अ स्ट्रगल, रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न टू क्रिएट द न्यू यू, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। अब fear of rejection when approaching or worrying it will damage my confidence, fear of being alone forever, never finding a woman who truly values me, fear of commitment because I lose my independence or freedom, fear of expressing my true emotion thinking that make me weak appear weak, freedom of being judged by woman, और ऐसे कुछ चीजें हैं
पढ़ लेना, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, जब मैं उसको करेक्ट करूंगा नेक्स्ट सेशन के लिए गो थ्रू टू सेशंस। तो ये सब इसमें है। टेस्ट में कौन है भाई? हाँ, दिस इज समथिंग अबाउट genetic triad, and then these are some protocol statements. You have to go through all these protocol statements every। तो ये कुछ होते हैं कॉमन, शॉर्ट टैपिंग कहते हैं उसको। शॉर्ट टैपिंग भी होती है, मिड लेवल टैपिंग भी होती है, लॉन्ग टैपिंग भी होती है। जब आप डे 4 पे रहेंगे तब आपको समझेगा ये क्या होता है। फिर लॉन्ग स्टेटमेंट्स, कुछ चीजें होती है कि आप शॉर्ट में नहीं निपटा सकते, आपको काफी डिटेल में ही जाना पड़ेगा उन चीजों के लिए। पीडीएफ नॉट ओपन, ओ थैंक यू ब्रो। श्योर भाई, थैंक्स अ लॉट। यार तुम बताते भी नहीं। सी ब्रो, दिस ओके, आई विल। अभी पीडीएफ दिख रही है ब्रो? यस नो? यस। तो ये देखो, ये पीडीएफ है, इसमें काफी मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स करेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ एक एक एग्जांपल दिए हैं, ये 10 के 10, सो आप वो भर सको। ये फियर के ऊपर, फियर ऑफ रिजेक्शन व्हेन अप्रोचिंग अ वुमन, वरिंग इट विल डैमेज माय कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, लैक जेलेसी, जेलेसी टुवर्ड्स अ फ्रेंड हु गेट्स मोर अटेंशन फ्रॉम वुमन एफर्टलेसली, एंगर, एंगर एट माई सेल्फ, वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन पॉन एंड बिल्डिंग और ऑफ बिल्डिंग रियल कनेक्शंस, पॉन पे ही, इमेजिनेशन पे ही, गिल्ट अबाउट बीइंग टू शाय एंड मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, और कोई और बाजी मार के लेके गया, अभी तुमको बड़ा गिल्टी फील कर रहा है कि मैं क्यों एडवांटेज नहीं ले पाया उस सिचुएशन का। genetic try blaming my family history for my lack of confidence and introvert nature, tapping protocol and statement for man। ये और ये है शॉर्ट टैपिंग। शॉर्ट टैपिंग इज समथिंग जब आपको कराटे चॉप पे टैप करना है, एंशियस और डीपली, ये फियर के लिए, ये इनसिक्योरिटी के लिए, दिस आर ऑल कंसिडर्ड। और ये कॉमन स्टेटमेंट है, ज्यादातर गेम में ये स्टेटमेंट होते हैं। वैसे तो पांच पांच दिए हैं मैंने, पांच में से दो तीन हर एक के होते हैं। इवन दो आई फील जेलस ऑफ गाइज हु आर मोर सक्सेसफुल विद वुमन ये काफी बंदों को होता है। गिल्ट, इवन दो आई फील ऑफ गिल्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये पांच पांच एग्जांपल दिए, कुछ लोगों के लिए सब हो सकते हैं। और उसको कैसे टैप करना है वो भी। नाउ देर आर सर्टन थिंग्स, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्टेटमेंट। लॉन्ग स्टेटमेंट लाइक it is related with certain kind of specific incident happened, and that has created a block inside your mind. Now भाई, you have to describe too much in detail so that हम क्या होता है ना ब्रो, हम हमारे एक्सपीरियंसेस से, पुराने जो हो गए उससे इतने स्टकअप होते हैं टू क्रिएट समथिंग। वो बंदर की तरह होते हैं, वो छोड़ना ही नहीं है उसको। वो ताजा ताजा घाव लेके घूम रहे हैं। कोई प्यार करेगा क्या हमसे? कोई प्यार करेगा क्या हमसे? इफ दैट इज द केस, ट्राई टू वर्क ऑन इट। तो यहाँ पे थोड़े से डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखने पड़ेगी। यू फील, व्हाट डू यू एग्जैक्टली फील, द रीजन, वो हम डे 4 पे सीखेंगे। डे 5 पे आपको ये कंप्लीट करना है। सॉरी, डे 5 पे हम फिर राउंड्स लेंगे, डीप इमोशनल कनेक्शन इसके बारे में। और ये हर एक चीज के लिए लिखा है, लॉन्ग स्टेटमेंट वगैरह, शॉर्ट स्टेटमेंट। तो एक एक हम ट्राई कर सकते हैं, बाकी आप घर पे बैठ के रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इतना सब कुछ है। उसके अलावा दो तीन शीट्स और है, उनको भी शेयर कर दूंगा मैं डे 4 पे। एंड द द डेट्स विल बी, डेट्स जो मैंने कहे हैं वो रहेंगे, दिस दिस डेट्स विल बी देयर। मोस्ट प्रॉब्ली डेट्स आर टेंटेटिव, अगर कुछ होता है तो चेंज करेंगे। आई विल अपडेट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। दोज हु आर न्यू can join the WhatsApp group, pin me, message me personally, I will share you the link of the group. Okay, apart from that, if we will take one or two question, I will stop the recording and we will take one or two questions.